Good morning, friends. This is Kiran Sir's voice, and we are going to deal new poem Sour Grapes. Already we discussed in the last two videos. I hope you understand properly the theme of the poem. Now let's discuss about the poem. See here. A fox was trotting on one day. Trotting to run slowly. धीरे धीरे दौड़ना. Write the meaning of this word in your notebook. Trotting means to run slowly. And just above his head, he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe, and purple red. See the meaning of the first stanza. A fox was trotting on one day. There was a fox, and he was running slowly. एंड जस्ट अबाव हिज हेड, और उसके सर के ऊपर एक दिन एक फॉक्स धीरे धीरे दौड़ते हुए जा रहा था, और अबाव हिज हेड, उसके सर के ऊपर, ही सा अ वाइन विथ लवली ग्रेप्स, उसने एक वाइन देखी. वाइन, दिस इज कॉल्ड द वाइन. ओके, ही सा अ वाइन विथ लवली ग्रेप्स, रिच, ripe and purple red, and that grapes having a rich and fertile, भरे हुए, ripe, पके हुए, and purple red, this is the color of the grapes. So when we're discussing about the first stanza, we can say that the fox was wandering one day and run slowly, and just above his head he saw a lovely grapes, and which are the grapes are rich, ripe, and purple red. Okay, this is the meaning of the first stanza. This is very easy. Now see, eagerly try to snatch the fruit, snatch, to catch it, but it was too high. Poor Reynard had to give it up. Reynolds, this is the another name for fox, दूसरा वाला नेम. गिव अप करना, छोड़ देना. एंड हीविंग अ डीप साय, टू ब्रीथ हार्ड, ऐसे. ओके, सांस लेना और छोड़ देना. सो सी द मीनिंग. ईगर ही ट्राई टू स्नैच द फ्रूट्स, और वही फ्रूट्स को कैच करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया. बट इट वॉज टू हाई. बट दिस इज द ग्रेप्स हैंगिंग इन द वेरी हाई, बिकॉज दिस इज द एक फॉक्स के लिए पहुंच के बाहर थे, और वो ग्रेप्स वहाँ पर लटके हुए थे. ही जम्प सो मेनी टाइम्स बट ही डिड नॉट रीच देयर. ईगरली ट्राई टू स्नैच द फ्रूट, ही वांट टू कैच द फ्रूट बट ही डिड नॉट रीच देयर. व्हाई? बट इट वाज टू हाई. पुअर रेनार्ड हैड टू गिव इट अप. पुअर फॉक्स वांट टू गिव इट अप एंड हीविंग अ डीप साय, उसको छोड़ देना चाहता था वो ग्रेप्स को. जैसे उसने जंप लगाया, जंप वहाँ तक ग्रेप्स तक आई नहीं. सो दैट्स व्हाई ही वांट टू गिव इट अप एंड टेक अ डीप साय, एक लंबी सांस ली. ही कर्ड हिज नोज एंड सेट, कर्ड करना, मेकिंग अ राउंड शेप. ओके, ही कर्ड हिज नोज एंड सेट, उसने अपना नोज राउंड किया और बोला, डियर मी, I would not waste an hour. So that's why he is giving the reason here, because his jump could not reach on the grapes that which was hanging on the tree. So that's why he making a satisfied himself, dear me, I would not waste an hour. मुझे यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा जो आवर है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए. अपॉन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट. ऐसे ही इस कॉमन फ्रूट्स के लिए मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सावर. सो दैट्स व्हाई द फॉक्स ऑलरेडी सेड दैट इन द नेक्स्ट लाइन. आई एम श्योर, मैं ये बोल सकता हूँ श्योर के साथ, ग्रेप्स आर सावर. ये जो ग्रेप्स लटके हुए हैं, दिस ग्रेप्स आर सावर. जनरली दिस टाइप ऑफ क्वालिटी हैविंग द पीपल, because when they catching any things, if they do not catch that things, they say that these are the bitter things, this is the bitter things, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं. So that's why this is the fox,
this is the fox was discussing about here, and this type of quality described about here, and he said that dear me I could not waste an hour, मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपॉन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट, ऐसे एक कॉमन फ्रूट्स के लिए मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड आई श्योरली सेड दैट दिस ग्रेप्स आर सावर. Okay students, I hope you understand the first, second and third stanza. This is a very easy, you can understand very well. Now see the last stanza. "'Tis thus we often wish through life when seeking wealth and power." So these are the fox, this is the fox is the example for the society, because this type of people, fox type of people having in the society, tis thus we often wish through life, हमारे लाइफ में भी ऐसे इंसान हमें मिलते हैं when seeking wealth and power, कि जो लोग संपत्ति और पावर के पीछे लगे हुए रहते हैं. And when we fell, say like the fox, and when we catching the wealth and power, but we do not get the any wealth or power, so that's time we can say the like the fox. जो fox ने कहा है उसी तरीके से लोग यहाँ पर कहते हैं we are sure the grapes are sour. We are sure the grapes are sour. So that's type so many people want to get the wealth and power, and after that he do not get the wealth and power, they also say like the fox. What is say? We are sure the grapes are sour. हम ये श्योर है कि जो चीज़ें हमें मिली नहीं वो खट्टे है, बिटर है, सावर है. So that's why this is the example given here, and actually fox is the example for so many peoples. So students, are you understand the poem? This is very simple. Go through again. Sir want to go through again. A fox was tottering on one day and just above his head. एक दिन fox दौड़ते हुए जा रहा था, उसके सर के ऊपर he saw a vine with lovely grapes. उसके सर के ऊपर देखा कि लवली ग्रेप्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, which are the rich ripe and purple red, कि जो फर्टाइल है, पके हुए हैं और रेड कलर के हैं. Eager he tried to snatch the fruit, but it was too high. उसने कैच करने का प्रयास किया पर वो बहुत ऊंचे थे. बेचारा गरीब फॉक्स हैड टू गिव इट अप. उसने वो प्रयास करना छोड़ दिया. एंड टेकिंग अ ब्रीथ हार्ड, और लंबी सांस लेके उसने वो गिव अप कर दिया. ही कर हिज नोज एंड सेड. गिव अप करने के बाद उसने नोज को राउंड किया और बोला डियर मी आई वुड नॉट वेस्ट एन आवर. मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. किसके लिए? अपॉन सच मीन्स एंड कॉमन फ्रूट. ऐसे क्षुल्लक और कॉमन फ्रूट्स के लिए मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सावर. दैट्स वाई द फॉक्स सेड कि ये ग्रेप्स ये खट्टे हो सकते हैं, सावर हो सकते हैं. टेस्ट अस वी ऑफन विश थ्रू लाइफ व्हेन सीकिंग वेल्थ एंड पावर. जब कोई सोसाइटी के लोग वेल्थ और पावर के पीछे पड़े हुए रहते हैं अपने लाइफ में, एंड व्हेन वी फेल, एंड जब हम फेल हो जाते हैं वो चीज़ें पाने के लिए, तो फॉक्स जैसे ही हम कहते हैं से लाइक द फॉक्स वी आर श्योर द ग्रेप्स आर सावर. हम भी कहते हैं कि ये जो ग्रेप्स है वो सावर है. सो दैट्स वाई दिस इज द वेरी गुड पोएम. I hope you understand properly. Okay students? Okay, thank you. Have a nice day.